techniques audit introduction. So we are studying basically, see, unit 1 was about introduction to audit, where we had studied what is auditing, you know, what are the errors, frauds which auditor needs to identify, what are the principles which auditor needs to follow, and what are the types of various financial audit are there. So this we had discussed in unit 1. Okay. Then gradually we moved on to unit 2, where actually the auditor's job started. So auditors का job कहाँ से start होता है? By preparing audit plan, by preparing audit program, and how he maintains the documentation. Okay. So this we discussed in unit 2. Now we are moving to unit 3, where exactly we are discussing what type of techniques auditor follow in his auditing. Auditing में techniques क्या follow करता है? Whether he checks each and everything, or whether he picks the samples and he checks. If he picks the samples, then how he will decide which samples he is supposed to check, what are the things how to keep in mind while picking the samples. All these things we will be discussing in unit 3. Am I clear? Connect किया आपने unit 1, 2 and now 3 को connect कर रहे हो ना आप लोग? How it is connected you are understanding, right? So now unit 3 में basically there are 4 topics which we are supposed to discuss, and unit overview you can see here. Okay. So what are the 4 topics which we will be discussing? First topic, test check. Second topic, audit sampling. Third topic, internal control. And fourth topic is internal audit. So these 4 topics we will be discussing. Test check, sampling, internal control, internal audit. Okay, so let us start with the first topic, that is test check in unit 3. Okay, I repeat, we are starting from today unit 3 of auditing, that is auditing techniques and internal audit introduction. Okay, so in that we are discussing 4 topics today. We are starting with 4 topics, that is test check, sampling, internal control and internal audit. In that, the first topic which we are discussing is test check. Okay, so यहाँ पे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ ऑडिटर का. What is the कहानी? ऑडिटर का काम क्या रहता है, क्या करना रहता है, क्यों ये टेस्ट चेक टॉपिक यहाँ पे आया, ये मैं कहानी आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताती जाऊंगी. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग विच ऑडिटर इज सपोज टू डू, है ना, ऑडिटिंग क्यों कर रहा है, व्हाई ऑडिटर इज डूइंग ऑडिटिंग. ऑडिटर हैव टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन whether the financial statements are true and fair. The main objective of auditor क्या रहता है? Yes, जो भी financial statements उसके सामने रखा है, whether those financial statements are showing true picture or not, that is his objective, right? So to perform this objective, to meet this objective, he have to collect the evidence and do verification of assets and liabilities, है ना. So ये जो objective है उसको achieve करना है, तो he will start collecting the evidences, and जितना भी evidences collect किया है उसके basis में वो verification of assets and liabilities start करेगा. Okay, now evidences कैसे रहता है? Are generally in the form of vouchers, है ना. Vouchers बोलते हैं, जो भी evidences है, supporting documents है, उसको हम vouchers बोलते हैं. Now प्रॉब्लम क्या है? चेकिंग दीज वाउचर्स आर कॉल्ड एज वाउचिंग. ओके, जो जब ऑडिटर इसको चेक करता है ना, ये वाउचर्स को एक एक करके विद द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग बोलते हैं. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम इज हियर, सी दिस पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट. ओके, इफ द कंपनी इज वेरी लार्ज and associated with many transactions, then क्या होगा बच्चों? जब कंपनी बहुत बड़ा है, एक एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है, एक महीने में बहुत सारे ट्रांजैक्शन, साल में there are huge transactions which are happening. So can an auditor check each and every voucher? No, it is practically impossible for him, है ना. Thousands of vouchers in a day it is happening, because there are huge transactions it is going on in a company, or in a month there are so many transactions which are going on, and so many vouchers are there in the company.
सो कैन ही चेक ईच एंड एवरी वाउचर? नो, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है. ऐसे करते बैठेगा ऑडिटिंग 2-3 महीना नहीं, 1 साल में भी खत्म नहीं होगा. Then comes the picture of the test check. Okay, therefore auditors uses checking method and select few samples from the huge set of transactions for vouching and few assets for verification. Okay, so therefore what auditor is doing, you can see the last line, students. Auditor uses the test checking method and select few samples for vouching. सो क्या करता है वो टाइम पे जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे वाउचर्स है कंपनी में, बिकॉज कंपनी इज वेरी लार्ज कंपनी, then auditor cannot check each and every transaction because practically it is impossible for him. Then what he is doing, he is selecting the few samples for vouching and then few assets for verification. Then he is doing his auditing work. Okay, so this is how the story of test check has arrived. स्टोरी समझा ना सबको? एवरीवन यू अंडरस्टूड? सो टू स्टार्ट विद ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहता है. सो ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ही हैव टू कलेक्ट एविडेंसेस. सो एविडेंसेस जनरली कैसे रहता है? वाउचर्स के फॉर्म में रहता है, राइट? सो ये वाउचर्स जो है जो चेक करता है उसको हम वाउचिंग बोलते हैं. सो जब कंपनी बहुत बड़ा है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होता है, तो प्रैक्टिकली एक एक वाउचर को बैठ के चेक करना ऑडिटर को इम्पॉसिबल रहेगा. तब के जाके ऑडिटर क्या करता है, कुछ सैंपल्स उठा के जब चेक करता है उसको हम टेस्ट चेक बोलते हैं. द कहानी वाज गुड, है ना? You understood, right, with this story how the test check has arrived. Okay, chalo, now let us move on ahead. Okay, chalo abhi aage badhenge. Meaning of test check. Professor Makes has given one definition of test check. To select, simple definition, to select and examine a representative sample from large number of similar items. So बहुत सारे similar items रहता है. Okay, similar items matlab there are thousands of sales vouchers, cash sales vouchers, there are thousands of credit sales vouchers, there are thousands of rent paid vouchers, there are thousands of cash salary paid vouchers. Similar हो गया है ना, salary सारे vouchers एक जैसा है, rent का सारा every month पे हो रहा है तो ये सारे एक जैसा है. So then what auditor is doing, he is selecting and examining a representative sample from that large number of similar items. So बहुत सारे similar items है, उसमें samples जब pick करके check करता है उसको हम test check बोलते हैं. Representative sample मतलब क्या है बच्चों? The sample which you are picking, that is representing the entire bundle of similar transactions. सिमिलर आइटम से आप पिक किया है ना, वो दो सैंपल्स आर रिप्रेजेंटिंग द ह्यूज सेट ऑफ सैंपल्स व्हिच आर अवेलेबल विद द ऑडिटर. सो दैट्स व्हाई प्रोफेसर मेक्स हैज यूज्ड दैट वर्ड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. फॉर एग्जांपल क्लास में सीआर एसीआर रहते हैं. Why we are calling them representatives? Because they are representing the entire SYBCom class, है ना? SYBCom के क्लास के तरफ से उनको कुछ कम्युनिकेट करना है टीचर से, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग SYBCom ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना? सो what is representative, you understood? So whenever auditor picks a little samples from the large set of similar items, those samples are representing those large set of items. Okay, in other words, test check can also be called as checking less than 100% of the item within an account or class of transactions. So बहुत सारे transactions हैं, उसमें जब auditor 100% से कम check करेगा, 100% चेक करना मतलब क्या हो गया? पूरा चेकिंग हो गया, है ना? पूरा चेकिंग नहीं कर रहा है, 100% से कम चेक कर रहा है, तो हम उसको टेस्ट चेक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल हियर. When doing audit of purchase transactions, okay, ऑडिटर को अभी ऑडिटिंग कर रहा है, सिर्फ कहाँ फोकस्ड है? परचेज ट्रांजैक्शंस पे फोकस है.
Okay, so auditor have to obtain the evidence about purchase transactions now, है ना. Auditor को evidence लेना है purchase transactions का, तो evidence लेगा लेकिन पूरा का पूरा नहीं लेगा purchase transaction. So क्या क्या evidences रहता है. Okay, he will take purchase vouchers, but how many vouchers he is checking? See there, only 25%. See the first point which has arrived now is to check the purchase transaction. He is checking the purchase vouchers, but पूरा checking नहीं कर रहा है, सिर्फ purchase percent check किया 25%. Check 25% of posting. Okay, सिर्फ vouchers check किया तो काफी नहीं है, उसका काम खत्म नहीं हुआ. हमने सेकेंड यूनिट में ऑडिट प्रोसीजर पढ़ा था, है ना. प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स रहता है ये हमने पढ़ा है. सिर्फ वाउचर्स चेक करते ही खत्म नहीं होता है. नाउ ही हैव टू चेक द पोस्टिंग फ्रॉम परचेज जर्नल टू क्रेडिट लेडजर, क्रेडिटर्स लेडजर, है ना. जर्नल से लेडजर में जो पोस्टिंग हो रहा है वो चेक करना है, वो भी पूरा नहीं चेक कर रहा है, 25% उठाया. अगेन बच्चों ये 25% में एग्जाम्पल दे रहे हो, इट नीड नॉट बी 25 ओनली, इट कैन बी 80, इट कैन बी 70, इट कैन बी 10% आल्सो. ओके, अगेन ये परसेंटेज कैसे फिक्स करता है, ऑडिटर को कहीं पे भी लिख के नहीं दिया रहता है 10% ही पिक करना है, 30% कैसे पिक करेगा वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. देन okay, what else he is doing? हाँ, he is checking the creditors ledger. पोस्टिंग चेक करने के बाद लेडजर अकाउंट चेक कर रहा है, वहां पे भी सारे क्रेडिटर्स का लेडजर अकाउंट नहीं चेक कर रहा है. सी द पॉइंट देन, he is checking only 25% of creditors ledger. सिर्फ 25% क्रेडिटर्स लेडजर को चेक कर रहा है. ओके, देन he will check only 25% of balances. Okay, उसको उसके बाद क्या करना है, क्रेडिटर्स का स्केड्यूल चेक करना है, बैलेंसेस को कंपेयर करना है. बैलेंसेस भी पूरा नहीं चेक कर रहा है, only 25% he is checking. Then if needed he have to send the letter of confirmation. चिट्ठी भेजता है क्रेडिटर्स को, लेकिन सारे क्रेडिटर्स को चिट्ठी नहीं भेजेगा, 25% पिक करेगा सैंपल्स, है ना. Then he will send the letter. So इफ यू कैन सी बच्चों, मैं 5 अलग अलग वेराइटी का ऑडिटिंग प्रोसीजर आपको बोला, लेकिन ये सारे प्रोसीजर में ऑडिटर 100% नहीं कर रहा है, सिर्फ 25% किया. दिस इज व्हाट नोन एज टेस्ट चेकिंग. एवरीवन अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी व्हाट इज टेस्ट चेकिंग. सबको समझ में आया? सो इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, not checking 100%. Auditor is not checking each and every transactions. Why? The very simple reason is the checking will become impossible when the company is very large and there are very huge number of transactions. Checking 100% will become impossible. Therefore, whenever auditor applies audit procedures, he will go for sampling. The very good example which I have given for purchase transactions. Hope you understood test checking meaning till here बच्चों. यहाँ तक सबको clear हो गया? So, students, still here you understood what is test checking. Okay. Now let us move on to the. Okay. There are few areas where auditor cannot apply test checking. Okay. हर जगह test checking नहीं apply कर सकता, क्योंकि there are few areas where everything needs to be checked. There are few areas where auditor test checking samples उठा के बिल्कुल check नहीं कर सकता, सारे चीजें check करना पड़ता है. So कहाँ पे test checking apply नहीं हो सकता? Again, what is test checking? You remember in your mind that it is selecting the samples and checking. That is what test check. Test check का meaning कभी भूलो मत. Okay, दिमाग में डाल के रखो. Now, where test checking cannot be applied, when auditor is checking opening and closing transactions, है ना. Very few opening closing transactions रहता है. Okay, opening transaction, closing transaction बहुत important रहता है कंपनी में, क्योंकि साल के एंड में जो transactions होता है, साल के beginning में जो transactions होता है, बहुत important रहता है. So those transaction when auditor is checking, better auditor checks each and every transactions over there, not applying the test check. So opening transaction, closing transactions पे ज्यादा नजर डालना रहेगा ऑडिटर को, बिकॉज ऐसे हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन. क्यों ज्यादा नजर डालना है? जब क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस रहता है बच्चों, ईयर एंड में हो रहा है, सो
हो सकता है कंपनी अकाउंटेंट क्या किया है, कुछ जो ट्रांजैक्शन है जो ईयर एंड में हुआ है उसको नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग में ले लिया है ना, या जो ओपनिंग ट्रांजैक्शन है जो ईयर का बिगिनिंग में हुआ है ना। सो वो जो ईयर के बिगिनिंग में ट्रांजैक्शंस दिख रहा है वो सारे करंट ईयर है के ही है कि लास्ट ईयर का ट्रांजैक्शन बाय मिस्टेक करंट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ गया। सो ऐसा हो सकता है ना। सो ओपनिंग ट्रांजैक्शन क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस पे इसके लिए वो ज्यादा ध्यान देगा। ओके, सो वहां पे ही कैन नॉट अप्लाई टेस्ट चेक। होप यू अंडरस्टूड है ना। क्या मिस्टेक्स हो सकता है ओपनिंग ट्रांजैक्शंस में, हो सकता है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग ट्रांजैक्शन करंट ईयर का ओपनिंग ट्रांजैक्शंस में दिख रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कुछ परचेज हुआ था, लास्ट ईयर सेल्स हुआ था, वो अकाउंट उधर ही क्लोज होना चाहिए था, बट वो कहाँ दिख रहा है, करंट ईयर का अप्रैल या मई के ट्रांजैक्शन में दिख रहा है। तो दैट शुड नॉट हैपन। एंड क्लोजिंग ट्रांजैक्शन मार्च या फेब या मार्च में ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन वो अकाउंटेंट ने क्या किया है, उसको एंट्री मारा है जून या अप्रैल के बुक में जो नेक्स्ट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाता है। सो ऐसे सब मिस्टेक्स हो सकता है इन ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस में। सो देयरफॉर ऑडिटर हैव टू बी गिव मोर फोकस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रांजैक्शन, देयरफॉर ही कैन नॉट अप्लाई टेस्ट चेक हियर। सो टेस्ट चेक अप्लाई नहीं कर सकता मतलब क्या है, पूरा चेकिंग करना है ना, 100% चेकिंग करना है। सो दैट इज द फर्स्ट वेयर ही कैन नॉट अप्लाई टेस्ट चेक। सेकंड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में टेस्ट चेक अप्लाई नहीं कर सकता। यू नो व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, यस और नो स्टूडेंट्स? यू हैव लर्न दिस इन आई थिंक इफ 11th या 12th में आपने पढ़ा रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। What is bank reconciliation statement? Where you are matching your cash book with bank book, है ना। जब कैश बुक बैंक बुक मैच कर रहे हो, सो इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया है, तो यहाँ पे एक एक ट्रांजैक्शन चेक करना ऑडिटर को बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। सो ऑडिटर नॉट डू टेस्ट चेकिंग हियर, बिकॉज जब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया है वो रिकंसाइल करने के लिए बनाया है कैश बुक और बैंक बुक को। वहां पे बैठ के इफ ही अप्लाइज टेस्ट चेक, इफ ही सेलेक्ट, if he checks few transaction, then that will not be proper. So therefore auditor cannot apply test check in case of bank reconciliation statement. Third, items requiring calculations and estimates like depreciation, royalty, जहां पे ज्यादा calculations का matter है, those items auditor cannot apply test check, क्योंकि कैलकुलेशन मतलब हर एक आइटम अलग अलग रहता है, हर एक डेप्रिसिएशन अलग रहता है, हर एक रॉयल्टी कैलकुलेशन अलग रहता है, हर एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग रहता है। जहां पे कैलकुलेशंस की बात है, ऑडिटर वहां पे सैंपल्स चेक करते नहीं बैठ सकता, you have to check each and every transactions over there. Okay, then very important और material transactions, हाँ, जो कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है या मटेरियल ट्रांजैक्शन है, ऑडिटर को लगता है ये ट्रांजैक्शन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लोन ट्रांजैक्शंस। ओके, सो देयर auditor if he checks one or two samples that is not sufficient, he cannot apply test check there, he have to check each and everything. Okay, then next one, हाँ, where there are seasonal or non recurring transactions, है ना, सारे seasonal transaction है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस है, कंपनी एक्सपोर्ट किया है लेकिन बहुत सारे एक्सपोर्ट नहीं है कंपनी का, ज्यादातर डोमेस्टिक बिजनेस ही है कंपनी का। कभी ऐसा एक महीने में ऐसा दो ट्रांजैक्शन है जिधर एक्सपोर्ट दिख रहा है। नाउ टेल मी, कैन द ऑडिटर अप्लाई टेस्ट चेक देयर? नहीं, एक्सपोर्ट में भी हुआ ही 10 है, मैं 2 ट्रांजैक्शन चेक कर लूंगा, ऐसे बोल सकता है कि नो, हुआ ही 10 ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट का, so auditor have to check all those 10 transactions. So there he cannot apply test check. Okay, you understood bachcho what is this topic is about? Where auditor cannot apply test check, kahan pe auditor test check apply nahi kar sakta। not applying the test check मतलब क्या है, सैंपल्स पिक नहीं करता है, पूरा चेक करने का है ना। where auditor is not applying test check means what, he is not checking the samples, instead of that he is going for 100% checking. So where and all he cannot apply test check, shall we repeat? Yes, the first one,
wherever opening and closing transactions are more, है ना, opening transaction closing transactions में गड़बड़ होने का possibility ज्यादा रहता है, so there he cannot apply test check. Second, when he is checking bank reconciliation statements, है ना, बैंक रिकंसिलिएशन एक्चुअली कैश बुक पासबुक को मैच कर रहे हो, बैंक बुक को मैच कर रहे हो, सो वहां पे एक एक ट्रांजैक्शंस भी इंपॉर्टेंट रहता है, सो देयर एक एक एंट्री भी इंपॉर्टेंट रहता है, देयर ऑडिटर कैन नॉट अप्लाई टेस्ट चेक. थर्ड इज where items which are having more of calculations, है ना, जो items जहाँ पे calculations बहुत सारा है, depreciation हो सकता है, royalty हो सकता है, या interest calculation. So calculation कैसा होता है, एक calculation जैसा दूसरा नहीं रहता है, amount अलग अलग आता है. So that time auditor have to check that individually each and every transaction. He cannot apply test check. Very important one, material transactions, है ना. Fourth, जो कंपनी का मटेरियल ट्रांजैक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, सो वहां पे ईच एंड एवरी ऑडिटर नीड्स टू चेक, देयर ही कैन नॉट अप्लाई टेस्ट चेक. लास्ट वन इज सीजनल और नॉन रिकरिंग, मतलब बार बार नहीं हो रहा है कंपनी में ट्रांजैक्शंस. ओके, वेरी गुड एग्जाम्पल आई हैड गिवन, एक्सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस ज्यादा है, साल में 10 ट्रांजैक्शन है जिधर एक्सपोर्ट किया है, सो वहां पे ऑडिटर वो पूरा 10 ट्रांजैक्शन चेक करना है, वहां पे ही कैन नॉट अप्लाई टेस्ट चेक. ओके, hope you understood बच्चों what is test check and where auditor can apply and where he cannot apply. यहाँ तक हमने डिस्कस किया है. ओके, Now, why test check is needed? क्यों जरूरी है ऐसे सैंपल्स पिक करके चेक करना? ओके, वेरी सिंपल, दो रीजन मैं आपको देती हूँ. ओके, सिंपल सा दो रीजन मैं आपको दे रही हूँ. वन इज फुल चेकिंग इज वेरी इम्पॉसिबल, है ना, जहाँ पे कंपनी बहुत बड़ा है, बहुत सारा ट्रांजैक्शंस है, ऑडिटर को ऑडिटिंग 2-3 महीने में कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करना है, तो वो पूरा चेकिंग करते बैठेगा, तो इट इज impossible for an auditor to check. Okay, so that is the first reason, that's why auditor is going for test checking. The second reason, full checking is not needed also, है ना, it is unnecessary. क्यों पूरा चेकिंग करते बैठेगा? जहाँ पे ऑडिटर को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां पे पूरा चेकिंग करेगा, जहाँ पे ऑडिटर को लगता है oh these transactions are not very important, then he will pick the sample and he will check. So where full checking is needed, where he will check, where it is unnecessary, he will not check. So therefore auditors generally go for test checking. Why? The two reasons are full checking impossible है और full checking जरूरी भी नहीं रहता है. ठीक है. Now very 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 important, जब ऑडिटर सैंपल्स उठाएगा, वो 30% हो सकता है, 20% हो सकता है, 10% हो सकता है, ये 10% उठाएगा कैसे? हाउ ही विल पिक द सैंपल्स? ऐसे ही रैंडमली, हाँ जो हाथ में मिला वो उठाएगा, या कुछ केयर लेना है, कुछ फैक्टर्स कंसिडर करना है? यस, he have to depend on few factors while picking the samples. So what are those factors? Okay, samples ऐसे उठा सकता है which is based on the period. That is the first point which you can see. Okay, like sales vouchers of first week and last week of the month. So जब अभी पूरा साल में, पूरा महीने में समझो 1000 वाउचर्स है, सेल्स का ही 1000 वाउचर्स है, तो पूरा 1000 वाउचर्स ऑडिटर चेक नहीं करेगा. अभी उसमें से उसको 100 वाउचर्स निकालना है, तो कैसे 100 वाउचर्स निकाल सकता है? तो महीने का फर्स्ट वीक का 50 वाउचर्स निकालेगा, महीने का लास्ट वीक का 50 वाउचर्स निकालेगा. ऐसे कर सकता है? नहीं तो वीक वाइज, है ना, एक एक वीक का वो 20 या 25 वाउचर्स निकाल सकता है. सो इफ ही कैन डिवाइड द पीरियोडिकली वाउचर्स को, वहां से सैंपल्स पिक करेगा, दैट विल बी बेटर. Yes or no? Tell me students. एक महीने का ऐसे रैंडमली ऐसे सैंपल्स उठाया और पता चला पूरा एक ही दिन का सैंपल्स आ गया, या एक ही हफ्ते का सैंपल्स आ गया ऑडिटर के पास, बाकी पूरा चेक ही नहीं करेगा वो. सो व्हेन ही इज पिकिंग द सैंपल्स, ही शुड टेक अ बेस, है ना, वो बेस पीरियोडिकल हो सकता है,
अमाउंट वाइज कभी कभी अमाउंट भी होता है ना। 1 लाख के ऊपर वाला वॉचेस में 20 सैंपल उठाया ऑडिटर ने, 1 लाख का नीचे वाला वॉचेस में 10 सैंपल उठाया. सो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन डिवाइड अमाउंट वाइज, पीरियोडिकल. सो बट ही शुड कीप अ बेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कुछ बेस रख के सैंपल्स उठाना चाहिए. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, कभी कभी सरप्राइज चेक भी करना चाहिए. ओके, मैनेजमेंट को पता नहीं रहना चाहिए वो कौन सा वाउचर पिक करने वाला है. मैनेजमेंट में सोचा था वो महीने का पहला वीक में वाला वाउचर निकालेगा, लेकिन ये अचानक जाके बीच का वो जो वीक है उसका वाउचर्स पूछेगा, है ना. तो जिसमें गड़बड़ होने का पॉसिबिलिटीज है, मैनेजमेंट उसको हाइड करना चाहता था. सो ऐसे कभी कभी ऑडिटर सरप्राइज चेक भी करना चाहिए, so that his test checking will be successful. And third, extent of checking. Okay, मैंने अभी बताया 10%, 20%, 80%. ये कैसे डिसाइड करता है? ये कंप्लीटली ऑडिटर का पर्सनल जजमेंट के ऊपर रहता है. ओके, completely depends on personal judgment. For example, where transactions are very huge, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो सैंपल्स कम उठाएगा कि ज्यादा उठाएगा? टेल मी स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी? वेयर द ट्रांजैक्शंस आर मेनी, ऑडिटर विल पिक few samples or he will pick more samples? Who will tell me quickly? Where the transactions are very large in numbers, so whether auditor will pick few samples or large samples? ज्यादा सैंपल्स उठाएगा कि कम सैंपल्स उठाएगा? क्विकली टेल मी, एनीवन. जब ऑडिटर चेक करेगा कम सैंपल से चेक करेगा कि ज्यादा सैंपल? जब ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो कम सैंपल चेक किया तो काफी है? पक्का? he have to pick more samples in that case, बच्चों. Okay, say for example, I'll just give you one last example and then I will wind up for the day. Okay, so समझो, okay, principal sir फीडबैक लेना है टीचर्स का. ओके, देयर आर 2 क्लास जिनसे फीडबैक लेना है. लिसन टू मी केयरफुली. एक क्लास है SYBCom A डिवीजन, जहां पे 100+ बच्चे हैं, 130 प्लस बच्चे हैं. एंड दूसरा क्लास है SYBBI, जहां पे 70 स्टूडेंट्स हैं. ओके, 70 स्टूडेंट्स है. अभी प्रिंसिपल सर के पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है. यू नो, ही इज इन्वॉल्व इन, देयर आर सो मेनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज व्हिच ही हैव टू परफॉर्म. सो एक स्टूडेंट 130 स्टूडेंट से भी बात करके फीडबैक नहीं निकाल सकते. इवन सेम वे SYBBA में 70 स्टूडेंट से भी बात करके फीडबैक नहीं निकाल सकते. सो अभी सर क्या करेंगे? टेस्ट चेकिंग करेंगे, सैंपल्स उठाएंगे, है ना, सैंपल्स उठाएंगे. सो कौन से क्लास से ज्यादा सैंपल्स उठाएंगे, ज्यादा बच्चों को फीडबैक के लिए लेंगे सर? SYBCom से लेंगे कि SYBBA से? टेल मी अभी, नाउ आंसर माय क्वेश्चन. हाँ, करेक्ट साहिल, SYBCom. व्हाई? बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, 130 स्टूडेंट्स है, वहां से 5 बच्चों से फीडबैक ले लिया, काफी है? नो, व्हेन 130 का क्लास है तो मिनिमम सर को 15 to 20 स्टूडेंट्स लेंगे तो बेटर है सैंपल्स के लिए, है ना. वही SYBBA में है 70 क्लास, 70 का क्लास है, हाफ ऑफ द SYBCom क्लास, है ना. सो वहां से एक 10 बच्चे उठाएंगे तो भी काफी है, या 7 बच्चे उठाएंगे तो भी काफी है. नाउ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, that is how the samples are picked by an auditor. When the transactions are many, थोड़ा बहुत sample उठा के फायदा नहीं है. You have to pick more samples. When transactions are very less, he can pick less samples or he can check each and everything there, है ना. समझो एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चे ही है, तो प्रिंसिपल सर को सैंपल उठाने की जरूरत नहीं है. सारे 20 से जाके बात करके फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि 20 ही बच्चे हैं, है ना. सो इन दिस वे how the auditor applies test checking. Hope all of you understood this question. Okay, so I will resume, I will stop my class over here.